morning, students. Today we are going to learn the sentence. As you know that a sentence is a group of words which makes a complete sense is called sentence. With the example, with definitions and with the application of group of words, we will see how it becomes a sentence. As you can see here, a group of words which makes a complete sense is called a sentence. यानी कि शब्दों का समूह जो पूर्ण अर्थ देता हो उसे हम वाक्य बोलते हैं. Further, it will be more clear to you with the help of examples, and this example is going to help you that really all group of words can be a sentence, or only it has its a specific order of words, then only it can be a sentence. Here examples will clear all your doubts. So look at the example. I learn mathematics. Learn mathematics. I see loves her mother. As you can see in the very first example, a group of words. Here you will see I learn mathematics. Here learn mathematics I. The similarity of words are equal. Equal words are there in both the sentences. Then what is the difference? You will see I learn mathematics. It is giving a complete sense because it is in proper grammatical order. So my dear students, for being a sentence, the words should be in proper grammatical order, then only it can be said a sentence. So for that there should be your subject in the beginning of the sentence, and then after verb, and after that object or complement. It depends on the structure of the sentence you are writing. Second, in the very second example, you will see that learn mathematics I. What is the difference? That you find that both examples have the similar words, but one is giving
its complete sense, another is not. The difference is that this one is in proper grammatical order and the second example is not in proper grammatical order, because the verb is in the beginning, after that object is, and at last subject is there. That's why it cannot be said a sentence. Even it has words, group of words, but it cannot. For that, for being a sentence, you need to apply subject, verb and object, means in order. All the same in the very second example, third example, you can see that she loves her mother. Here, she subject, verb and her mother object. It has been put in proper grammatical order. It is giving its complete sense. That's why it can be said a sentence. But here the very fourth example, the same words, group of words are there, but it cannot be said sentence because it is not put in proper grammatical order. ये proper grammatical order में नहीं है, इसीलिए ये हमारा sentence नहीं है, ये भी हमारा sentence नहीं है. यानी कि now it is clear to you that for being a sentence, a group of words must be in proper grammatical order, otherwise it cannot give a complete sense, and until it gives complete sense, it can never be said a sentence. So parts of sentence. As you can see here, I have written first one is no subject and second one predicate. There are two parts of sentence. For being a sentence, these two things are very important to be in group of words, then only it can be a sentence. The first thing, subject, and another one is predicate. And what is the subject, that we will see here with the help of examples, and what is a predicate. What is the difference between a subject and predicate?
So you can see here that I have written these examples for your more clarification, for clearing your all doubts regarding subject and predicate. As I told you earlier, that subject, definition of subject. More than that, it is important to understand where to apply subject in the sentences and how it is used. So definition, if you talk about the sentence about which we talk is called sentence, यानी कि जिसके बारे में हम बात करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं, सॉरी सब्जेक्ट बोलते हैं। जिसके बारे में हम बात करते हैं उसको सब्जेक्ट बोलते हैं, या डूअर भी बोला जाता है। अगर बात करें तो डूअर को भी हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोला जाता है। यहाँ पे पहला सेंटेंस में आप देखेंगे, पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार। यहाँ पटना जो है हमारा क्या है, वो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, और इज द कैपिटल ऑफ बिहार जो है वो हमारा क्या है, वो प्रेडिकेट है। एंड प्रेडिकेट का डेफिनेशन क्या है, अबाउट विच वी टॉक इज कॉल्ड सब्जेक्ट, एंड व्हाट एवर, यानी कि द पार्ट विच टॉक्स अबाउट द सेंटेंस इज कॉल्ड प्रेडिकेट। यानी कि सेंटेंस का वो भाग, सेंटेंस का वो पार्ट जो सब्जेक्ट के बारे में बताता हो उसको हम बोलते हैं प्रेडिकेट बोलते हैं। इज द कैपिटल ऑफ बिहार, देन व्हाट, पटना। इज द कैपिटल ऑफ बिहार, व्हाट, पटना। यानी कि यहाँ पे किसके बारे में बात किया जा रहा है, पटना के बारे में। तो पटना क्या है, व्हाट इज पटना, व्हाट पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार। यानी कि ये हमारा क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। ठीक है। और प्रेडिकेट में जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो वर्ब होता है। वर्ब का होना बहुत ही मस्ट होता है। यानी कि किसी भी सेंटेंस में अगर आपको आइडेंटिफाई करना है कि हम प्रेडिकेट को और सब्जेक्ट को कैसे सेपरेट करें, जहाँ से किसी भी सेंटेंस में जहाँ से हमारा वर्ब स्टार्ट होता है उस सेंटेंस में वर्ब से लेके आगे वाला जितना भी सेंटेंस एंड करता है, लास्ट करता है, वहाँ तक हमारा प्रेडिकेट बोला जाता है। और प्रेडिकेट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड कंप्लीमेंट। इट डिपेंड्स ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। ये सेंटेंस के स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसी सेंटेंस में आप कॉम्प्लीमेंट यूज कर रहे हैं या ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट दोनों यूज कर रहे हैं, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस सेंटेंस में देखिए, ये जो है इज द कैपिटल ऑफ बिहार यहाँ पे यूज किया गया है, ये हमारा प्रेडिकेट है, क्योंकि ये जो है ये टोटल यहाँ से यहाँ तक ये पटना के बारे में बात कर रहा है, पटना के बारे में बता रहा है। सेकेंड, श्याम इज वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड। यहाँ पे इज मैंने बताया कि जहाँ से वर्ब शुरू होगा, इसमें भी जो वर्ब है वो इज, यहाँ भी वर्ब हमारा क्या है, इज है। ये भी इज वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड हु, श्याम। यानी कि किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, श्याम। व्हाट, श्याम क्या है, इज वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड। यानी कि प्रेडिकेट यहाँ पे इज से लेके इज वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड, यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या हो गया, ये प्रेडिकेट हो गया। यानी कि ये पार्ट इसके बारे में बताया। दूसरा, यूजुअली subject of the sentence come in the beginning of the sentence, but occasionally it comes at the last of the sentence too। यानी कि जनरली देखा जाता है कि सब्जेक्ट हमारा कभी भी शुरुआत में आता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम सेंटेंस में अपने सब्जेक्ट को लास्ट में भी ला सकते हैं, उसका फंक्शन चेंज नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, हियर कम्स द बस, यहाँ पे हमने यूज किया हियर कम्स द बस। इस सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट देखा जाए तो हमारा सब्जेक्ट कहाँ है, द बस, ये सब्जेक्ट है, और वर्ब कहाँ है, यहाँ पे कम्स है। ठीक है। और यहाँ पे हमारा हेड वर्ब है हियर। आउट ऑफ द वुड्स केम अ बियर।
यहाँ पे देखिए अ बियर, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है, यानी कि सब्जेक्ट लास्ट में भी ला सकते हैं। जैसे यहाँ पे यूएससी इज टेलिंग ए स्टोरी, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे सेंटेंस पहले आ गया और इज टेलिंग ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। इस सेंटेंस को मैं एक बार और ये करके दिखा रहा हूँ इसको, जैसे, और इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे इस सेंटेंस को द बस कम्स हियर, इस तरह भी हो सकता है। यानी कि सेंटेंस में इसमें चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं सेंटेंस को, या अ बियर केम आउट ऑफ वुड्स। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन दोनों में सेंटेंस आप देखिए यहाँ इसको पहले ला दिए इसमें, लेकिन इसमें हमारा सब्जेक्ट कहाँ आ गया, लास्ट में आ गया। यानी कि सेंटेंस में ज़रूरी नहीं है कि आपको सब्जेक्ट हमेशा बिगनिंग में ही रहे, सेंटेंस में सब्जेक्ट बाद में भी आ सकता है। दूसरा जो होता है, बहुत बार ये मिसकंसेप्शन होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग होता है कि हम सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो मान लेते हैं कि हमेशा सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ज़रूरी नहीं है कि हर सब्जेक्ट के बाद आने वाला, हर वर्ब के बाद आने वाला वो हमारा क्या हो, ऑब्जेक्ट हो। कभी कभी कम्प्लीमेंट भी हो जाता है। ये अब कैसे डिसाइड करेंगे, इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे कि कैसे ये डिसाइड करा जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए सी हैज गिवन मी अ बुक, यहाँ पे हमने लिखा he is a doctor, यहाँ पे लिखा I am happy, my uncle is टीचर। अब यहाँ पे आप देखेंगे इसको, सी हैज़ गिवन मी अ बुक, यहाँ फर्स्ट में मैंने लिखा है यहाँ पे, जैसे आप देख सकते हैं इसमें हमारा सब्जेक्ट हो गया और हैज़ गिवन है ये वर्ब हो गया, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया है। यानी कि यहाँ दो ऑब्जेक्ट का यूज किया गया है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का। दूसरा यहाँ पे देखिए ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, इज हो गया वर्ब, और एडाप्टर को हम लोग क्या मान लेते हैं, बेसिकली ये देखा जाता है कि हम समझते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है, हालांकि ये ऑब्जेक्ट नहीं, ये क्या है हमारा कॉम्प्लीमेंट है। अब कॉम्प्लीमेंट किसे बोलते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट क्या है। ये हैप्पी भी क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। ये टीचर भी क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। तो हाउ कैन यू आइडेंटिफाई इन ए सेंटेंस कॉम्प्लीमेंट एंड ऑब्जेक्ट, यानी कि एक सेंटेंस में आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट किसे कहा जाता है और ऑब्जेक्ट किसे कहा जाता है। फॉर दैट व्हेन यू आस्क द क्वेश्चन यूजिंग व्हाट एंड whom, when you ask the question using what and whom and you get the reply
then it is your object. In the very first sentence, यहाँ पे आप क्वेश्चन पूछेंगे, she has given a book to whom. यहाँ whom से हम क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आंसर मिल रहा है हमारा क्या, me. That's why it is an object. इसीलिए इस सेंटेंस में me जो है एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है. Second one, I told you that using what you can also get the answer. She has given me a book. She has given me what. यहाँ what से क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ये मेरा आंसर मिल जाए. When you are using in a sentence these two things and getting reply, that means object is there in a sentence. But here, she is a doctor. When you ask, he is a doctor, and doctor and he, in this sentence you find that not that a very different persons. ये दोनों जो है अलग अलग पर्सन नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये और ये अलग अलग पर्सन है. यहाँ पे she has given me, यानी कि देने वाला वो है और लेने वाला मैं, यानी कि दोनों जो पर्सन क्या है, अलग अलग है. लेकिन यहाँ पे he is a doctor, ही डॉक्टर है, यानी कि वही डॉक्टर है और वही वह है, यानी कि दोनों क्या है, सेम पर्सन है, यानी कि सेम पर्सन. लेकिन यहाँ पे सेम पर्सन नहीं है. इस तरह से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं. आई एम हैप्पी, तो हैप्पी ये जो है सब्जेक्ट का क्या है, ये डॉक्टर जो है सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है. यहाँ पे आई, हैप्पी जो है ये आई का कॉम्प्लीमेंट है, और माई अंकल और टीचर अलग अलग पर्सन नहीं है. माई अंकल ही क्या है, टीचर है, यानी कि ये सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है. ये किसका कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है. तो ये ज़रूरी नहीं होता है कि हमेशा हमारा सेंटेंस में क्या है, ऑब्जेक्ट ही आए. ये हो गया इसका. इस तरह से आप कॉम्प्लीमेंट को क्या करते हैं, आप कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ज़रूरी नहीं होता है कि हमेशा हमारा सेंटेंस में ये हमारा ये रहे.